Hello students, welcome to the remaining portion of manufacturing industries and in continuation with yesterday's lecture. Children, yesterday we had discussed about manufacturing industries, its definition, its importance and how they are adding to our GDP, what is your contribution towards Indian economy and how various types of industries are classified on the basis of their sources. Today I will discuss about agro-based industries. Okay, agro-based industries. Agro-based industries में हमारा all those industries which takes raw material from agricultural sector. For example, textile industry is agro-based industries because it requires raw material cotton. Cotton is produced in agricultural field and it is an agricultural activity that is from primary sector. That's why textile industry is agro-based industries. Children, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे कंट्रीब्यूट 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. हमारी कंट्री का जो 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इसमें 14% एम्प्लॉयमेंट जो है आज हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे रहा है. ठीक है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 4% इन जीडीपी. हमारे देश का जो जीडीपी है उसका जो है 4% कंट्रीब्यूशन हमारे टेक्सटाइल मिल हो जाता है. जस्ट इमेजिन हाउ मच कंट्रीब्यूशन इट होल्ड्स. चिल्ड्रन, इट इज सेल्फ रिलायंट. ये जो इंडस्ट्री है ये सेल्फ रिलायंट है क्योंकि हमें बाहर से रॉ मटेरियल नहीं मंगाना पड़ता है. This raw materials are produced in our country and it is sufficient. So it is self-reliant. Everything is in our country. We have got infrastructure, land, labor, power supply and proximity to market as well as ports and you can say urban facilities. All these things are available for textile industry in India and that's why India is, textile industry is made India's second largest foreign exchange earner. Okay, this has made India as a second largest foreign exchange earner. Just imagine. Okay, and here you have got cotton textile. इसी में हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक आता है कॉटन टेक्सटाइल जिसमें कॉटन हम यूज़ करते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका सिंथेटिक फाइबर भी यूज़ करते हैं, है कि नहीं. सिंथेटिक फाइबर से भी बनाते हैं, वूल सी फॉर्म में आता है. बट अभी हम एग्रो बेस्ड की बात कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल की. तो इसमें क्या है, पावर लूम. इट केम फर्स्ट. ठीक है, हमारी कंट्री में पावर लूम जो है सबसे पहले आए. ठीक है, पावर लूम. इससे पहले लोग हैंड लूम्स यूज़ करते थे. इट हैज़ लेस एफिशिएंसी, more and more labor was required and longer period were required for manufacturing and it became costly. That's why, right? So in cotton textile now power loom came, right? It works on electric supply. Okay children, and along with this first cotton mill that came to India is in Mumbai in 1854. 1854 में इंडिया में मुंबई में फर्स्ट कॉटन मिल लगाया गया. ओके, एंड हियर इन नवंबर 2011 हियर वर 1946 कॉटन मिल इन इंडिया. ठीक है, नवंबर 2011. ठीक है, इन नवंबर 2011 30 नवंबर 2011 का ये डाटा है. जिस समय इंडिया में 1946 कॉटन मिल्स they were produced. It means they were established. Okay, and out of them 80% it belongs to private sector. जैसे ग्वालियर शूटिंग सेटिंग, सियाराम शूटिंग सेटिंग, मयूर शूटिंग सेटिंग्स, ये सब हमारे जो है कॉटन मिल और क्या कहते हैं टेक्सटाइल्स बनाते हैं और ये 80% हमारा प्राइवेट सेक्टर को जाता है एंड ओनली 20% goes to public sector, that is government undertaking. Okay students, so in Maharashtra and Gujarat your cotton textiles are located. Maharashtra and Gujarat. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल. ठीक है, रॉ कॉटन हमारा जो है ब्लैक सॉइल में इट ग्रोज वेरी बेस्ट. सो हियर इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इट इज़ लोकेटेड. ओके, वाई इट इज़ लोकेटेड हियर? बिकॉज ऑफ पोर्ट फैसिलिटी. यहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटी है महाराष्ट्र और गुजरात में.
फिर इसके बाद यहाँ का क्लाइमेट मॉइस्ट है, नमी होती है जिससे धागा नहीं टूटता है, ठीक है, योर थ्रेड डज नॉट ब्रेक बिकॉज ऑफ मॉइस्ट क्लाइमेट. एंड देयर आर लेबर्स अवेलेबल. पीपल कम्स फ्रॉम रूरल एरिया टू वर्क इन Mumbai and Gujarat. They goes there, they flee from these portions because there is lot of employment generation, because it generate 14% employment. Understand? So many youths who are not getting job, they flee towards Maharashtra and Gujarat, and it creates perfect generation of employment. Here moist climate भी हो गया, ठीक है. तो ये सारी हमारी फैसिलिटी की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में ही हमारे कॉटन मिल लोकेटेड है. ओके चिल्ड्रन, सो अलॉन्ग विद दिस इंडियन एक्सपोर्ट यार्न, इंडिया जो है, जो हमारा कॉटन यार्न है इंडिया, ये जापान को भी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है. इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन यार्न टू जापान, ठीक है. और इस तरीके से इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल कैपेसिटी आफ्टर चाइना. चाइना इज फर्स्ट एंड इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल कैपेसिटी. स्पिंडल जिससे धागा लपेटा जाता है, धागा बनता है, ओके, दे आर स्पिंडल. ओके, तो इंडिया का जो क्या कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन है हमारी कंट्री का. और इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये चाइना के बाद इसका नंबर आता है. अच्छा, ये हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, इराटिक पावर सप्लाई. हमारी कंट्री में पावर सप्लाई इज इरेगुलर, ठीक है. एंड इट वट एवर पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाई हाइडल स्टेशन, पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन बिकॉज ऑफ लेस जनरेशन. अंडरस्टैंड? एंड दिस क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम एंड चैलेंज. And second thing, cotton textile mills, they are having very degraded machines. Old machines are still working, and their efficiency has gone down. Okay, so it created because of degraded machinery, means they cannot produce up to their potential. Okay, and along with this, it makes them helpless. ओके, इरेक्टिव पावर सप्लाई, डिग्रेडेड मशीन, इसकी वजह से हमारे कॉटन मिल्स अपनी फुल पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं. ओके, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. अदरवाइज इंडिया हैव टू बिकम लार्जेस्ट सप्लायर, और इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाता अगर यहाँ पे अच्छी मशीनें होती और हमारे पास पावर सप्लाई फ्रिक्वेंट मिलती. ये चिल्ड्रन, सो अभी देख लीजिए, अभी कॉटन इसमें आपका एग्रो वेस्ट में आपका एक जूट टेक्सटाइल आता है. ओके, जूट टेक्सटाइल मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इंडिया में जो जूट टेक्सटाइल है इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड आफ्टर बांग्लादेश. जूट बैग आपने देखा है, जिसको चीनी का बोरा आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा आता है, सुतली जिससे बनती है जूट. ओके, सो ये जो आपका जूट है, इससे आपका वेरियस टाइप्स ऑफ अदर थिंग्स आर जीन्स. जीन्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं दे हैव जूट कॉन्टेंट. ओके, उसके बाद बैग आपका जूट का बनता है. आज आजकल आपके कैनवास शूज ये भी जूट के बनते हैं. ओके, सो ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, हमारे इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है. फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश आता है, क्योंकि बांग्लादेश टोटल आपका वो मैंग्रोव एरिया है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, शैलो एरिया है, और वहाँ पे जूट प्लांट्स बहुत रिच क्वांटिटी में ग्रो होते हैं. एंड people are engaged because they are pure and they are engaged in this activity and their production is more and more. Okay students, now here India is second after Bangladesh. In 2012 in Bangladesh 80 jute mills were established. This is current data. 2010-11 में वेस्ट बंगाल में अकेले 80 जूट मिल है. इससे आप सोच सकते हैं कि वेस्ट बंगाल इज rich in jute production. Okay, so here river Hooghly is located. Here river Hooghly ये located है, and its length is 98 kilometer long and 3 kilometer wide. Hooghly river 98 kilometer लंबी और 3 kilometer चौड़ी है. That's why it provides shallow area. Okay, shallow area होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे jute plants हैं, their bundles they can be easily submerged in water for long period and they does not flow away. Because of shallow portion there is less flow of water
and this water is mostly still water there. That's why this activity is possible in Hooghly Basin. And it has proximity of jute area. यहाँ पे jute production बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में. Okay, and along with this there is water transport available. Water transport is available in near Hooghly River because of large span of river water. Okay, and here one thing more, there are good railway, roadways and waterway network. रेलवे, वाटरवे, रोडवे सारे नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से है वेस्ट बंगाल में. एंड द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता इज मेट्रोपॉलिटन सिटी. इट प्रोवाइड्स एवरी फैसिलिटीज. दैट इज फर्स्ट इज पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फ्रॉम हियर. अलॉन्ग विद दैट इट प्रोवाइड्स नेशनलाइज्ड बैंक्स. All urban facilities, market is provided here. Along with this communication system, network system, and here shelter for various kinds of laborers, right? And various employees who are engaged in this activity. That's why here this portion has become one of the important place. Second thing, labor is cheap because it is in near Bihar. West Bengal and Bihar, they are close in contact. So labors are very cheap here, and along with this they are near large urban center. अभी मैंने बताया कोलकाता के पास होने की वजह से वहाँ बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड मेनी फैसिलिटीज, मार्केट फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल. There is airport is available, your seaport is available, and along with various types of educational institution where employees can educate their children, and there are international quality market available, malls are available. So it is very good area. Okay children, and in 2011-12 the record came, jute mill alone it had given 3.7 lakh workers employment. ठीक है, जूट मिल ने हमें जो है 3.7 लाख वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट दिया है. ठीक है, और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है जूट मिल्स का. ओके चिल्ड्रन, बट इट फेस मेनी चैलेंजेस. जूट मिल्स फेसेस मेनी चैलेंजेस. व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर? देयर इज स्टिफ कंपटीशन विथ सिंथेटिक फाइबर. जितने भी हमारे आजकल बोरे हैं, ठीक है, जो सैक बनता है, दे आर मेड अप ऑफ जूट, बट इट हैज़ स्टिफ कंपटीशन विथ सिंथेटिक फाइबर. अब आपके प्लास्टिक के बोरे अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट, बट दे आर चीप. दैट्स वाई मेनी मैन्युफैक्चरर दे यूज इट फॉर packing your fertilizers and many other things, insecticide, pesticide. Beside that, jute bags have to be used there because they are biodegradable, but it's their misfortune. Understand? Many policies, state government policies are not preferable to them. It should be in their preference. But their plastic fibers, synthetic fibers, they are also useful, right? They are using, but this is a challenge for it. Okay, here अब हम बात करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सुगर फैक्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, सुगर फैक्ट्री. India is second number in world in sugar production. Okay, and first in गुड़ and पंसारी production. इंडिया का फर्स्ट नंबर है गुड़ बनाने में, पंसारी बनाने में. ओके, एंड सेकेंड इज शुगर आफ्टर चाइना. ओके, so bulky raw material it requires because sugar cane is bulky. It is loaded on trolleys of truck and it reaches to sugar mill, and in between there is a large span of time. Sometimes they have to record its weight. It takes 2 or 3 days. So there is a reduction of sucrose content. सूख जाता है ऐसे पड़े पड़े, इसका जो sucrose content है that is reduced. That's why there is less yield of sugar from the sugar cane. However, India is producing in large quantity, but because of improper transport facility and unavailability of sugar mills, these farmers they are compelled to keep their sugar cane in front of sugar mill in queue for 2 or 3 days. So in this way sucrose content reduces, and this is misfortune of sugar factories.
Okay children, it should be moved. Okay, and along with this major challenges are seasonal nature. हमारी शुगर फैक्ट्री का सबसे मेजर चैलेंज क्या है? इसका नेचर सीजनल है. जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं दे आर गिवन सीजनल वर्क, राइट? So there is less quality of employment here, and sucrose content I have told that it reduces, है ना? And your machines are old style. Clear? हमारे शुगर मिल की मशीन भी जो है प्रोडक्शन के लिए ओल्ड मेथड यूज़ करती हैं, तो इसमें हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. दैट्स वाई वी केम एट सेकेंड नंबर. अदरवाइज वी हैव लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दिस एरिया, स्पेशली इन एशिया. ओके, बट इट इज़ आवर मिसफॉर्चून. देयर इज़ ट्रांसपोर्ट डिले. ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है. गांव में आप लोगों ने शुगर केन कट करा दिया, पता लगा ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है ना, तो ट्रैक्टर कहीं और इंगेज है, तो तब तक खेत में ही बंडल बना के पड़ा हुआ है, और 2-3 दिन उसको लेबर से लोड करने में 1-2 दिन लग जाता है, फिर रास्ते में 1 दिन लग जाता है शुगर मिल तक जाने में, फिर शुगर मिल के पास कांटे के सामने खड़ा करना पड़ता है उसको तौलने के लिए, उसमें 2-3 दिन बाद नंबर आता है, फिर पर्ची मिलती है तब वो अंदर जाता है. तो इस बीच में लॉस ऑफ सुक्रोज कॉन्टेंट, यानी जो उसकी कैपेसिटी है एकदम रिड्यूस हो जाती है. ओके चिल्ड्रन, सो इट इज़ अ मिसफॉर्च्यून of this industry. Okay, now we will discuss about mineral based industries. Okay, अभी तक तो हमने आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डिस्कशन कर लिया, अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ओके चिल्ड्रन, इट फिक्स द इंडेक्स ऑफ कंट्री. हमारी कंट्री का जो इंडेक्स है वो फिक्स करता है. किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है उसके इंडेक्स पे डिपेंड करता है. वो इंडेक्स शो करता है कि हमारी जीडीपी राइज होगी कि लो होगी, और हमारा जो ट्रेड है और कॉमर्स है, इस इंडेक्स की वजह से जो है हम प्राइस डिस्क्राइब करते हैं. जितने भी हमारे कमोडिटी सबकी प्राइस इंडेक्स पे डिपेंड करती है, और इंडेक्स अगर हाई चला जाता है तो सारे हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं दे बिकम हैप्पी. ठीक है, और ये चीज़ें जो है हमारे आयरन एंड स्टील इसको डिसाइड करता है. ओके, सो आयरन ओर. ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या यूज होता है? आयरन ओर, कोकिंग कोल. ठीक है, एंड लाइम स्टोन. ये 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं स्टील बनाने में. आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइम स्टोन. इसका रेशियो होना चाहिए 4:2. वेरी इंपॉर्टेंट. 4 जो होगा आपका आयरन ओर होना चाहिए, 2 जो होगा उसका जो है कोकिंग कोल होना चाहिए, और 1% हमारा क्या होना चाहिए? लाइम स्टोन इसमें मिलना चाहिए. ठीक है, जब ये 4:2:1 में मिला करके उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तब हमें जो है क्रूड स्टील मिलता है. ठीक है, वी प्रोड्यूस स्टील. ठीक है, वो भी क्रूड फॉर्म में रहता है. इट नीड्स एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत एफिशिएंट होना चाहिए बिकॉज रॉ मटेरियल इज बल्की. ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स ह्यूज स्पेस एंड ह्यूज ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है, और इसकी वजह से जो है हमें ट्रांसपोर्ट पे एफिशिएंटली ध्यान देना. और इसके साथ साथ इंडिया का अगर रैंक देखा जाए स्टील प्रोडक्शन में तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 3rd रैंक है क्रूड प्रोडक्शन में. क्रूड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया 3रे नंबर पे है. ओके स्टूडेंट्स, एंड अलॉन्ग विद दिस हमारा जो होता है क्या कहते हैं, कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है स्टील प्लांट की. इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है आयरन का उसको ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक ले जाते हैं. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन और मेल्ट होता है, उसको मेल्ट कराया जाता है लाइम स्टोन और कोकिंग कोल डाल करके, और वहीं पे उसका स्लैग हम रिमूव कर देते हैं. ओके, स्लैग रिमूव हो जाने के बाद हमें क्या मिलता है? पिग आयरन. पिग क्या होता है? एक ऐसे माउल्ड कढ़ाई होती है ऐसे बड़ी सी. ठीक है, उसी के अंदर इसका जो स्लैग रिमूव करके जो मोल्टेन स्टेट में हमारा स्टील है, ठीक है, उसको इसमें डाल दिया जाता है. इसी को पिग बोलते हैं. इसका जो शेप है पिग है, इसलिए जो आयरन है इसका नाम है पिग आयरन. ओके, ये जो माउल्ड है, ये जो कढ़ाई है, ये पिग इसको बोलते हैं इस कढ़ाई को. ठीक है, तो दैट इज पिग आयरन. ओके स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दिस इसके नीचे ये मोल्टेन आयरन इसके साथ जो है इसके साथ चिपके ना, इसमें इसके साथ अरेंजमेंट किया जाता है एक लेयर. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स इज डन
एंड इसके बाद क्या होता है, स्टील, ठीक है, मेकिंग का काम शुरू हो जाता है, स्टील इज मेड, ठीक है, एंड मैग्नीज इज एडेड। अब इस पिग आयरन में जब हम मैग्नीज ऐड कर देंगे तब स्टील बनेगा। अगर मैग्नीज नहीं ऐड करेंगे तब वो स्टील की क्वालिटी नहीं रहेगी, इसमें रस्ट लगेगा। लेकिन मैग्नीज डाल देने की वजह से अब इसमें स्टील बन जाएगा एंड इट इज़ रस्टलेस, रस्ट नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। और मैग्नीज डालने के बाद जो है हम उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए शेपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं दूसरे जगह पे, ठीक है, और उसको जो है क्या कहते हैं, जैसे हम शीट के शेप में या उसको रोल कर देते हैं या बड़े गर्डर्स के रूप में इसको फॉर्म करते हैं। इस तरह का शेप दे करके हम इसे मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स जैसे यूटेंसिल प्रेशर कुकर बनाते हैं हॉकिंस वाले, तो उनको स्टील चाहिए, ठीक है। फिर आपके आयरन एंड जो है आयरन बार्स जो आपका आता है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, उनको भी एक अलग शेप में दिया जाता है, उनको रॉड शेप में दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो है और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, मशीन्स हैं, वेयर आयरन इज़ रिक्वायर्ड, स्टील इज़ रिक्वायर्ड, तो उनको भी चाहे रोलिंग शीट में दे देते हैं। जो लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, अलमीरा बनाते हैं, ड्रम बनाते हैं, उनको रोलिंग शीट चाहिए, उनको शीट्स के फॉर्म में मिलता है। कुछ लोगों को एंगल्स के फॉर्म में दिया जाता है, आप मार्केट में देखते होंगे एंगल के फॉर्म में होता है, ठीक है, यल शेप में, राइट। ऐसे ऐसे करके कुछ जो है स्ट्रिप शेप में होता है, लॉन्ग स्ट्रिप शेप, जिससे गेट वगैरह ग्रिल बनता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जगह पे सप्लाई हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन टेल